हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनआईएस बोर्ड का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो है चैप्टर नंबर 21, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आज हम करेंगे पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप यानी राजनीतिक दल तथा दबाव समूह। ये टॉपिक देखा जाए तो कई मायनों में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हों, चाहे एनआईएस के बच्चे हों, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों, सभी बच्चों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इवन कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, और इसमें जो है हर एक बात पे जो है हम प्रकाश डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब तब होगा जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी हैव अ डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हियर, political parties and pressure group. There is a most important chapter here, political parties and pressure group. But first topic arrive here, this is important also, political parties mean and characteristics. This is important. First of all, on your mind question, the why do we need to political party? There is a most important question here, why do we need political parties? In the present day democratic country, political parties are considered as a essentially this component for the formation and working of the government. Of the course, in some countries like Libya, Obama, Qatar, and the United Arab Emirates, and there is a government without a parties. And these countries are not a democratic, and political parties are banned there. We can therefore infer that democracy functions successfully in the countries which have a competitive party system. The political party actually help their institution and process of government of democratic. They enables people to be a participate in the elections and other process of governance, and educate there is a facilitated them to be make a policy choose. If the political parties are necessary to make their working of the representative government possible, and you may be well asked as to be that it's the meaning of a political party and what are its main characteristics here and what are their role in a democratic government. There's the most important question, what are the role in the democratic government and what it's mean to the characteristics, and the also question in your mind the meaning of political parties here. The next year, the meanings of political party. This is important. Meaning of political party. A political party is generally described as a organized the body of people who share the common principle and cherish it contains common goal regarding the political system. A political parties operate and seeks a political power through a constitutional means to the translate it is a policy into the practice. It is a body of like-minded people having a similar view on a matter of public concern. The Gilchrist defined political party as an organized group of citizens who prefers or share the same political view and who, by the action of the political unit, and try to control their government. Another definition given by the
Details as a political party consists of group of citizens and more or less organized and who act as a political unit and who by use of there is a voting power and aim to control the government and carry out their general policies. From this definition, it is clear that a political party organized bodies and primarily concerned with the questioning and retention of power. The next year, characteristics. From the above mentioned definition of political party, following can be identified as there are main characteristics here. First of all here, a political party is an organized group of people. The organized group of people believe in a common principle and common goals. This is important characteristics here. And also characteristics here, it is an objective revolves around the seeking political power through the collective efforts. It employs the constitutional and peaceful method in seeking control over the government through the election and power. It is a translate its declare objectives into the governmental policy. This is important. आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं राजनीतिक दल तथा दबाव समूह, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है राजनीतिक दल तथा दबाव समूह। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट जो है राजनीतिक दल और अर्थ एवं विशेषताएं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसी के अंतर्गत हमारा पहला जो आया है, हम लोकतांत्रिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हमें लोकतांत्रिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आखिर हमें जो है दलों की आवश्यकता क्यों इतनी पड़ती है, और हमें पता भी है कि ये दल आपस में लड़ते रहते हैं और देश की भलाई तो दूर की बात है, ये अपने ही लड़ाई और कुर्सी के लिए सदैव जो है प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो देश की आज भलाई हो गई होती। आज हर क्षेत्र में जो ऐसी हालत है, उन सब कारणों का जो मेन बात आती है ये दलें होती हैं। शायद आप मानो चाहे ना मानो, लेकिन ये सच्चाई है। कहते हैं जितने भी प्रॉब्लम आते हैं, दंगे फसाद होते हैं, सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी ही करवाती है, क्योंकि उनको अपना जो है सिक्का जमाना होता है। एक दूसरे की सरकार को गिराने के लिए वो हर तरह के जो है प्रोपेगेंडा यूज़ करते हैं, चाहे वो उसके लिए जो भी बने वो करते हैं। इवन कि आम इंसान की जीवन भी चला जाए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी हमें दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। मैं ये नहीं कहता कि दल सब बेकार ही होता है, दल अच्छे भी होते हैं। कितने दल ऐसे होते हैं जो अपनी सच्चाई के लिए जाने जाते हैं और वो सच्चाई पे आगे बढ़ते हैं। लेकिन राजनीतिक में देखा जाए तो एक दूसरे को अगर नीचा दिखाना है तो आम जनता की बलि चढ़ाई जाती है इसमें, और ये कई रूपों के हो सकते हैं। चाहे आपने देखा होगा कभी किस बात के लिए दंगा, कभी किसी बात के लिए दंगा, कभी किस बात के लिए, कभी किस बात की, ये कंटिन्यू चलती ही रहती है। इसी का तो नाम है राजनीतिक। लेकिन मैं ये विचार रखता हूँ कि राजनीतिक ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीतिक स्वच्छ मन से होना चाहिए और देश के लिए होना चाहिए, क्योंकि हम तो लोकतांत्रिक देश है हमारा, और लोकतांत्रिक देश ऐसा होना चाहिए जहाँ पर जो है कोई भी दल अगर चुने जाते हैं तो उनका मेन एम जो होना चाहिए लोगों की भलाई होना चाहिए, और ये भी ना हो कि लोगों को आलस्य में डाल दे। तो ये सारी बातें दलों के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा प्रश्न उठता है कि हमें लोकतांत्रिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आजकल के लोकतांत्रिक देशों में सरकार के गठन एवं संचालन के लिए राजनीतिक दलों को आवश्यकता घटक के रूप में माना गया है। यानी संचार के लिए, सरकार के गठन के लिए, सरकार को चलाने के लिए राजनीतिक दल का होना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। हालांकि कुछ देश जैसे लीबिया हो, ओमान हो, कतार हो, संयुक्त अरब जो अमीरात हो यानी UAE में जो है दल विहीन सरकारें हैं, यहाँ पर कोई दल नहीं होता, ठीक है। और ये देश लोकतांत्रिक भी नहीं है, और ये राजनीतिक दल जो है प्रतिबंधित है। यहाँ पर कोई राजनीतिक दल नहीं है और ये प्रतिबंधित भी है कि यहाँ पर राजनीतिक दल कोई बना नहीं सकता। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लोकतंत्र उन्हीं देशों में सफलतापूर्वक संचालित होता है जिनके पास प्रतिद्वंदी पार्टी प्रणाली है। तो जनरल सी बात है, लोकतंत्र वहीं सफल होंगे जहां प्रतिद्वंदी पार्टी प्रणाली होती है। देखिए बात यहाँ पर सिर्फ इतना सा होता है, अगर पार्टियां नहीं होगी तो एक का गलती जो है दूसरे को नहीं निकाल सकता। तो ये
बात बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। अगर एक गलती करे तो उसके गलती को जो है बताने के लिए दूसरे पार्टी का होना काफ़ी महत्वपूर्ण वो रहता है। लेकिन बात यहाँ पर रहता है कि कोई भी पार्टी एक दूसरे को जो है प्रतिद्वंदी होते हैं, लेकिन एक दूसरे को इतना नीचा दिखाने के लिए आम जनता का बलि दे देते हैं, तो ये कहीं तक ठीक नहीं है। हमने आज तक देखा है राजनीति जितने टाइम से, वो आज की राजनीति देखा जाए तो सिर्फ खून खराबा का ही दौर से देखने को मिला है। और कहते हैं दंगा फसाद तो आम बन गई है। तो कहते हैं प्रतिद्वंदी पार्टी है, अच्छी बात है, सरकार की खामियों को बताओ, ये भी अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि आम जनता का बलि चढ़ाओ। तो ये तो कहते हैं पार्टी के लिए सबसे बुरी बात है और सही हो भी नहीं सकता, और ऐसे लोकतंत्र कभी सफल भी नहीं हो सकता। राजनीतिक दल वास्तव में लोकतंत्र, सरकार, संस्था और कार्रवाई में मदद करता है। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र, सरकार की संस्थाओं और कार्रवाई में काफ़ी मदद करता है, हर समय हेल्प करता है। ये लोगों को चुनाव एवं प्रशासन की अन्य क्रियाओं में भाग लेने में सक्षम बनाते हैं, उन्हें शिक्षित भी करते हैं और उन्हें जो है नीतिगत निर्णय लेने में मदद भी करते हैं। यदि राजनीतिक दल प्रतिनिधि सरकार के संचालन को संभव बनाने के लिए आवश्यक है, तो आप शायद पूछेंगे कि राजनीतिक दल का आवश्यक क्यों है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है और लोकतंत्र सरकार में उनकी भूमिकाएं क्या है। बहुत से प्रश्न हैं जो मन में उठते हैं, लेकिन सभी प्रश्न का उत्तर जो है यहीं पे मिलेगा। अब बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, क्योंकि आगे हम इसी बातों पर डिस्कस करेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या है, राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों होती है। जब हम जानते हैं कि राजनीतिक दल जो है अपनी मकसद के लिए जो है किसी प्रकार के दंगा फसाद करने से परहेज नहीं करती है, कई जगह तो देखने को मिला भी है और ये बात प्रत्येक नागरिक जानता है। इवन कि जो दंगे फसाद में इन्वॉल्व होते हैं वो भी जानते हैं कि ये सब सही नहीं है, लेकिन ना जाने किस चीज़ की लालच है, किस चीज़ की लालसा है, जो इस तरह के जो है अपने ही भाइयों बहनों को जो है लोग जो है मौत के घाट उतार देते हैं सांप्रदायिक दंगा के अंतर्गत। तो गलत है और पार्टियों को ये बात सोचना चाहिए कि अगर आप भारत में पार्टी बना रहे हो, पार्टी कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप देश के लेके चलो, देश के लिए सोचो और देश के लिए ही अपना जीवन का निछावर करो। कहते हैं अपनी स्वार्थ के लिए न पार्टी में ज्वाइन करो। बहुत से लोग जो होते हैं सिर्फ अपने पार्टी इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि वो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, अपने 2-4 पीढ़ियों को जो है खुशहाल देखना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोग के जो हैं बच्चे राजनीतिक में ही गए, अगर वो राजनीतिक पार्टी के संबंधित हैं तो वो राजनीतिक पार्टी में ही इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उनको जो है माता पिता मौका दे रहे होते हैं, चाहे उनकी योग्यता हो चाहे ना हो। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है राजनीतिक दल का अर्थ। आखिर जो है राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है। राजनीतिक दल को आमतौर पर जनता की एक संगठित इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि जनता ने उनको जो है संगठित किया है और अपनी भलाई के लिए किया है, रूल रेगुलेशन सही बनाने के लिए किया है, जो सामान्य सिद्धांतों पर आधारित होते हैं और राजनीतिक प्रणाली के बारे में इसके कुछ सामान्य लक्ष्य भी होते हैं। राजनीतिक दल सर्वैधानिक उपायों के द्वारा राजनीतिक सत्ता चाहते हैं, यानी जो है सर्वैधानिक उपायों के द्वारा राजनीतिक सत्ता ही प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए कार्य करते हैं जिसे वह अपनी नीतियों के अमल में ला सकें। और ये सामान्य सोच वाले लोगों का एक निकाय है, लेकिन जिनका जनता के संबंधित विषयों पर सामान्य विचार हो, तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण आ जाता है कि जनता के लिए भी उनके मन में अच्छे विचार होने चाहिए। और यही बात गिलक्रिस्ट के अनुसार राजनीतिक दल की परिभाषा, देखिए ये बात जो है गिलक्रिस्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि नागरिकों का एक संगठित समूह जो सामान्य राजनीतिक विचारों का साझा एवं व्यक्त करते हों और जो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए सरकार को नियंत्रण करने का प्रयास करती हूँ। देखिए कितनी महत्वपूर्ण इन्होंने गिलक्रिस्ट ने जो है डेफिनेशन दिया था कि नागरिकों का एक संगठित समूह जो सामान्य राजनीतिक विचारों का साझा हो, यानी सबका विचार एक जैसा हो और ये विचार होती है जनता की भलाई, जनता के लिए कार्य करना, ठीक है। और ये इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं, यानी सब मिलजुल के काम करते हैं। ये नहीं कि एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं और एक दूसरे को जो है बुरा भला कहते रहते हैं। ये राजनीतिक नेता देखते हैं, ये हो गए आप आए दिन जो है एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। जब इनकी पार्टी आती है तो वो उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, जब उनकी पार्टी होती है तो वो उन पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। यानी जो ये आरोप प्रत्यारोप के जो दौर होते हैं वो राजनीति में चलते ही रहते हैं, लेकिन कोई अपने जो है अपने ऊपर देखता नहीं, खुद को नहीं देखता कि मैं किस स्थिति में हूँ, सरकार कैसे चलाना चाहिए। सिर्फ
रूल रेगुलेशन बना देते हैं और इस पर कोई अमल नहीं होता। और ये बात आगे गैलेट के द्वारा भी कही गई थी। गैलेट ने भी एक परिभाषा दिया था कि एक राजनीतिक दल नागरिकों के समूह से बनता है। एक राजनीतिक दल नागरिकों के समूह से बनता है जो प्राय संगठित होते हैं और एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य भी करते हैं तथा अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करके सरकार को नियंत्रित करने का लक्ष्य भी रखते हैं और अपनी नीतियों को लागू भी करते हैं। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जनता मतदान दे के जो है अपने लिए प्रतिनिधित्व चुनते हैं। मैं तो एक विचार रखता हूँ कि जो जनता के द्वारा व्यक्ति चुने जाते हैं उनका मेन लक्ष्य जनता की भलाई ही होना चाहिए, लेकिन ये देखने को नहीं मिला है। आज कोई भी कार्य करवाने के लिए किसी भी चुने हुए व्यक्ति के पास जाइए तो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आपको। कभी जाइएगा तो अभी सोए हुए हैं, कभी जाइएगा तो अभी बाथरूम में कहें बैठे हुए हैं, कभी जाइएगा तो अभी भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो कभी जाइएगा तो कहेंगे कि अभी सोए हुए हैं। लेकिन जनता की बातें कोई नहीं सुनता। ये बहाने तो इनका चलता रहता है, लेकिन जनता ने इनको चुन के वहाँ बैठाया है, लेकिन जनता के लिए इनका थोड़ा भी कर्तव्य नहीं होता। तो ये बात गलत है और ये लोग भी यही सोचते हैं कि जनता 5 साल के लिए मुझे चुन लिया, 5 साल तो मेरी ऐश है, जितना हो सके पैसे इकट्ठे कर लो, उसके बाद हम रहें चाहे ना रहें। तभी तो देखते हो कि आए दिन सरकार जो है हर क्षेत्र में बदलती रहती है। कारण क्या यही है कि 5 साल वो आते हैं, 5 साल अपना जो है जेब गरम करके जो है अपना आराम से ज़िंदगी जीते हैं। अगर मैं एक बात सच्चाई बताता हूँ, अगर किसी भी राजनीतिक नेता पर अगर इंक्वायरी बैठाया जाए तो आप जनरली से देखिएगा कि उनको आय से अधिक संपत्ति ही मिलेगा, क्योंकि ये जनरली आजकल सीबीआई के छापे में देखने को मिल रहा है। और मैं तो कहता हूँ हर एक की छापा लगे तो पता लगेगा कि इनके पास जो इनकी कमाई है उससे अधिक कितनी अधिक संपत्ति है। देखते रहते हो, आपको न्यूज़ में अक्सर ऐसी बातें चलती ही रहती है। इसमें मेरा कोई विचार नहीं है, सब जो है मैं न्यूज़ के अंतर्गत बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो आम है। और मेरा विश्वास अगर प्रत्येक नेता पर अगर छापा लगाया जाए तो सब पे जो है काला धन निकलेगा ही निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये गलत है। कहते हैं जनता उनके लिए चुनती है, जनता इनको इतनी सारे जो है आराम देती है, लेकिन फिर भी ये जनता के लिए नहीं कार्यरत होते हैं, तो ये अपने भविष्य को ही जो है ख़राब करते हैं, क्योंकि दोबारा कभी चुनाव में दोबारा सफल नहीं हो सकते। और यही बात जो है यहाँ पर गैलेट ने भी कहा और आगे देखा जाए तो गिलक्रिस्ट ने भी यही बात को जो है उजागर किया अपने शब्दों में। इन परिभाषाओं से स्पष्ट हो गया है कि राजनीतिक दल संगठित इकाई होती है, यानी एक संगठित निकाय होते हैं और ये मूल्य रूप से सत्ता को पाने और उसे बनाए रखने के बारे में चिंतित रहती हैं। यानी देखा जाए तो सत्ताधारी अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए सदैव चिंतित रहते हैं कि कैसे जो है मुझे अपनी राजगद्दी बरकरार रहे, लेकिन वो जनता की तरफ कभी भी जो ध्यान नहीं रखते। उसके बाद है हमारे समग्र विशेषताएं। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। राजनीतिक दलों की उपयोग परिभाषा से उनकी प्रमुख विशेषताओं के रूप में पहचाना जा सकता है। राजनीतिक दल जनता का एक संगठित समूह होता है। अगर हम देखें सही बात में तो राजनीतिक दल जो है जनता का एक संगठित समूह होता है जो जनता चुनती है अपनी भलाई के लिए। जनता का ये संगठित समूह एक ऐसी नीतियों और एक ऐसे लक्ष्य पर विश्वास करता है जो वो उनके समक्ष रखते हैं। आप लोग देखते हो कि मैनिफेस्टो में ऐसी बातें लिखते हैं, लुभावने बातें, जो आम जनता जो है बहुत काफ़ी आकर्षित हो जाती है। लेकिन जनता भी थोड़ा सा यहाँ पर जो है गलती कर जाती है कि उनके लालच भरी बातों पर बहुत ही आसानी से आ जाते हैं, अपने विचारों को तौलती नहीं है, समझती नहीं है कि जो बातें लिखी गई है क्या वो सही है, क्या उस पर अमल करके क्या उनकी भलाई हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, जैसे पानी है, बिजली है, बहुत सी चीज़ें को सरकार ने ऐसे फ्री कर रखा है। इवन आप देख रहे हो कि पेंशन भी आती है, पेंशन जो देते हैं, ठीक है, चलो गरीबों को देते हैं, कहते हैं वृद्ध को देते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन नौजवानों के लिए उन्होंने नौकरी की व्यवस्था ना करके उनके लिए रोजगार भत्ता की व्यवस्था कर दिया है। आपने देखा ही होगा लेबर श्रम जो है कार्ड बनाई जा रही है। आखिर सरकार चाहती क्या है कि जनता को जो है जॉब न मिले, आम जो है नौजवानों को जॉब न मिले और उनके भत्तों पर अटके रहे। यहाँ तो ये विचार रखना चाहिए कि जो व्यक्ति भारत में बिल्ले बैठे हो उनको काम पे लगाया जाए, कोई ना कोई काम देना चाहिए। कामों की कमी नहीं है। आज देखा जाए तो एक व्यक्ति 5-5 पद पे बैठे पड़े हैं। सरकारी विभाग में चले जाइए, एक व्यक्ति जो है 50 विभाग को संभाल रहा होता है, तभी तो कोई काम नहीं हो पाता है समय पे। और जब भी बात करो तो हमारे पास व्यक्तियों की कमी है। मैं तो सच्चाई जानता हूँ, इसमें आप भी भली भांति परिचित होंगे
कि एक व्यक्ति जो है 5-5 जगह जो है अपनी जो है जगह बनाए रखता है। राजनीतिक में भी ऐसा ही होता है। कोई व्यक्ति जो है वहाँ का सांसद है तो वो उसके जो है आपको कैबिनेट मिनिस्टर बना हुआ है, तो कुछ और विभाग का 2-2 3-3 विभाग एक व्यक्ति के पास होता है। मैं तो ये बात नहीं समझ पाता हूँ कि ये जो व्यक्ति होते हैं 5-5 6-6 विभाग को संभाल रखे होते हैं, आखिर ये कंप्यूटर से भी तेज़ होंगे? इनकी तो समझ ही बहुत तेज़ होगी, क्योंकि 5-5 विभागों को संभाल लेना बड़ी मुश्किल और दुष्कर्म कार्य है। लेकिन ये लोग तो हर चीज़ को जो है आज सफल बना रहे हैं, तभी तो आए दिन रेल दुर्घटना होता ही रहता है। क्या करें, जब 5-5 6-6 व्यक्तियों के साथ हर विभाग को सौंप दिया जाएगा तो कहाँ होगा। मैं सिर्फ रेल की बात नहीं कर रहा, हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। आज बहुत से पोस्ट ऐसे ही खाली पड़े हुए हैं, तो सरकार सोच रही है कि एक व्यक्ति को पैसा मिले, जम के मिले। तभी तो देखते हो आए दिन जो है आपको देख ही रहे हो, सैलरी बढ़ती जा रही है सरकारी व्यक्तियों की। लेकिन ये नहीं कि दूसरे के लिए पद जो है बनाया जाए, दूसरे जो बच्चे बेरोजगार बैठे हुए हैं, जो बेरोजगारी की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उनके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी बनाया जाए। सरकार को सिर्फ यही ध्यान, क्योंकि आप एक बात याद रखना कि जो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर हम नौजवानों को खाली दिमाग करके बैठाते रहेंगे तो आम बात है कि जो हमारे देश में दंगा फसाद, ठीक है, आतंकवाद, सब कुछ होता रहेगा। अगर ये व्यक्ति सारे समय काम पे अपना लगे रहें, ड्यूटी करें, आएँ, बैठे, खाएं और सो जाएं, फिर उठें, तो इसमें उनको किसी भी और तरफ दिमाग लगाने की ज़रूरत उनको नहीं पड़ेगा। और देखा जाए तो हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। तो सोचिए, विचार कीजिए, क्या ये नीति सही है कि हम सब जो है लेबर कार्ड बनवाएं और लेबर कार्ड के रिगार्डिंग पैसे हम अपने जेब में रखें? ये सही नहीं है। सरकार की नीति गलत है, क्योंकि हमें रोज़गार चाहिए। हमें कहते हैं उधार में कुछ भी उधार का थैला नहीं चाहिए। क्या दोगे? 2 दिन दे दोगे 5,000, 1,000, 2,000, क्या ऐसे ज़िंदगी जिया जा सकता है? लेकिन अगर आप जॉब दोगे तो भारत का भी विकास होगा, उनके अपने घर का भी विकास होगा और जग का भी विकास होगा। तो ये बातों पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। आगे देखा जाए तो यहाँ पर यही है कि इसका उद्देश्य जो है सामूहिक प्रयोगों द्वारा राजनीतिक सत्ता हासिल करने में इर्द गिर्द घूमता रहता है। यानी जितने भी राजनीतिक दल होते हैं, इनकी यही विशेषता है कि जो भी हो, हर समय यही प्रयासों द्वारा राजनीतिक सत्ता हासिल करने के इर्द गिर्द घूमते रहती है। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि राजनीतिक जो है कैसे हम हासिल करें, इसी के इर्द गिर्द उनके विचारधारा घूमते रहते हैं। चाहे उनको इलेक्शन के टाइम किसी गरीब के पास जाना पड़ जाए, या इलेक्शन के टाइम कभी हमें किसान भी बनना पड़ जाए, या कभी द्वार द्वार जाना भी पड़ जाए, तो वो सब हरकंडे अपनाने को तैयार होते हैं। आपने देखा भी होगा, जैसे इलेक्शन आता है हर क्षेत्र में हर पार्टी के व्यक्ति जो है घर घर माता बहन करते हुए नजर आते हैं। इवन कि सबसे बातें करते रहते हैं, आम व्यक्तियों से करते हैं। लेकिन जैसे इलेक्शन का टाइम ख़त्म हो जाता है, 5 साल के लिए वो शक्ल तक भी नहीं दिखाती है। और ये हर एक क्षेत्र में हो रहा है, सिर्फ एक क्षेत्र की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और ये बात आप भी भली भांति जानते हो कि उनका जो है उद्देश्य होता है सिर्फ राजनीतिक सत्ता हासिल करने की इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। इसलिए वो हर तरह के जो है प्रोपेगेंडा अपनाते ही रहते हैं। उसके पश्चात विशेषताओं की तरफ ध्यान देते ये चुनावों के द्वारा सरकार पर नियंत्रित प्राप्त करने के संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण तरीके प्रयोग करता है। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो है चुनाव आयोग में इन बातों को जो है जिक्र भी की गई है कि चुनाव जो होना चाहिए शांतिपूर्ण होना चाहिए, संवैधानिक होना चाहिए, रूल रेगुलेशन से होना चाहिए। लेकिन आपने देखा ही होगा कि जब भी चुनाव होता है दंगे फसाद तो आम होते हैं। इवन कि कोलकाता साइड तो आपने देखे ही होगा कितने सारे दंगे फसाद देखने को आए दिन मिलता है। तो इसमें सोचने की बात है, विचार करने की बात है। सत्ता में आने पर वह अपने घोषित उद्देश्यों को सरकारी नीतियों में बदल देता है। ये उद्देश्य होती है कि जो भी उन्होंने घोषणा पत्र में दिया है उनको जो है जैसे वो सरकार में आएंगे वो सारी नीतियों को बदल देंगे और उनको जो है रूल रेगुलेशन बनाएंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए यहाँ पर सारी बात पॉजिटिव है, अच्छी बात है, जो होना चाहिए। मैं तो आपको कुछ उन बातों की तरफ भी इशारा किया हूँ जो हमारे क्षेत्र में नहीं होते हैं। इवन कि हर एक व्यक्ति जो है इन सारी समस्याओं से ग्रसित होता है। तो इस पर प्रकाश डालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था और यह आपके लिए भी समझना ज़रूरी था, क्योंकि आने वाला समय में आप भी इन्हीं पार्टियों में से एक बन सकते हो। आप भी जो है कहीं के जो है प्रतिनिधि बन सकते हो। तो कभी ये विचार ना रखना कि सिर्फ अपनी भलाई हो। कहते हैं जनता की भलाई ही राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य होना चाहिए और इसी मकसद के साथ अपना जीवन में आगे बढ़ने की सदैव कोशिश
कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए है जो है आपको बने रहना पड़ेगा त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, अच्छा लगा, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने से ये होगा कि एक तो त्रिपान स्टडी सेंटर का हेल्प भी हो जाएगा, दूसरा ये वीडियो बच्चों तक पहुँच भी जाएगा जिनको इस वीडियो की ज़रूरत होगा। और इसके लिए कुछ भी नहीं करना है विशेष, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो है 8th क्लास से एमएथ के बच्चों के लिए बहुत ज्ञान है। कहते हैं सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, वास्तविक ज्ञान भी है। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है। जो रेड बटन आपके मोबाइल में दिख रहा है, सब्सक्राइब कीजिए और त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइए।